Chapter 8 New Empires and Kingdoms. The Gupta Age is considered the golden age of ancient Indian history. The period between the decline of the Kushanas and the rise of the Guptas is called the Dark Ages. The Gupta Age को प्राचीन भारतीय इतिहास का गोल्डन एज माना जाता है। कुशानास के पतन और गुप्तास के उदय के बीच की अवधि को डार्क एजेस कहा जाता है। चंद्रगुप्ता आय 320-335 AD। Chandragupta I was the real founder of the Gupta dynasty. He ruled over India from 320 AD to 355 AD. He was the first Gupta king who assumed the title of Maharajadhiraja. He ruled over Patliputra. When he came to the throne, Magad was the only territory he ruled. Chandragupta I गुप्ता वंश के वास्तविक संस्थापक थे। उन्होंने 320 AD से 355 AD तक भारत पर शासन किया। वे पहले गुप्ता शासक थे जिन्होंने महाराज अधिराजा की उपाधि धारण की। उनका शासन पटलिपुत्र से था। जब वे सिंहासन पर बैठे तब मगध ही उनका एकमात्र क्षेत्र था। He married the Licchavi princess, Kumardevi. With the help of the Licchavis, he was able to extend his empire over Saket, the region of Ayodhya, Prayagraj, Allahabad and Magad. उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया। लिच्छाविस की सहायता से उन्होंने अपना साम्राज्य साकेत, अयोध्या क्षेत्र, प्रयागराज, अलाहाबाद और मगध तक विस्तारित किया। समुद्रगुप्ता 355-380 AD। Samudragupta was the son and successor of Chandragupta I. He defeated many territories of India and added them to his kingdom. Therefore, he is known as the Indian Napoleon. Unlike Napoleon, however, he was never defeated in battle. Thus, he can be said to be even greater than Napoleon. समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता I के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उन्होंने भारत के कई क्षेत्रों को पराजित कर अपने साम्राज्य में जोड़ लिया। इसलिए उन्हें भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। हालांकि नेपोलियन के विपरीत उन्हें कभी किसी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा। इस कारण उन्हें नेपोलियन से भी महान योद्धा कहा जा सकता है। Conquests of Samudragupta. He was one of the greatest rulers of the Gupta dynasty. He was chosen by his father to succeed him. As soon as he became king, he proceeded on a long campaign which brought him many victories. First, he defeated northern India and added Delhi and Uttar Pradesh to his kingdom. He fought against a number of kings in the Deccan and southern India such as those of Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनके फादर ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। जैसे ही उन्होंने थ्रोन संभाला, उन्होंने एक लंबे मिलिट्री कैंपेन की शुरुआत की जिससे उन्हें कई विक्ट्रीज की प्राप्ति हुई। सबसे पहले उन्होंने नॉर्थ इंडिया को पराजित किया और दिल्ली और उत्तर प्रदेश को अपने किंगडम में शामिल कर लिया। उन्होंने डेक्कन और साउथ इंडिया के कई किंग्स से युद्ध किया, जिनमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के शासक शामिल थे। Samudragupta defeated many kings in eastern India. He set out against the forest Tiavanbialis of the south. The Tiavanbialis of the south accepted his rule and pledged loyalty to him. समुद्रगुप्त ने ईस्टर्न इंडिया के कई किंग्स को हराया। उन्होंने साउथ के फॉरेस्ट Tiavanbialis के खिलाफ अभियान छेड़ा।
दक्षिण के इंटियावन बियालिस ने उनकी रूल को स्वीकार किया और उनकी लॉयल्टी की शपथ ली। He then triumphed over 9 tribal republics of Rajasthan. He marched further west and north. The Saka and Kushna kings also agreed to pay tribute. The power of Samudragupta extended beyond India. The king of Sri Lanka and Southeast Asia regularly paid tribute to the Gupta emperor. The Gupta Empire was mainly confined to northern India. इसके बाद उन्होंने राजस्थान की 9 ट्राइबल रिपब्लिक्स पर जीत हासिल की। उन्होंने आगे वेस्ट और नॉर्थ की ओर भी कूच किया। सका और कुशना के किंग्स ने भी उन्हें ट्रिब्यूट देने पर सहमति जताई। समुद्रगुप्त की शक्ति इंडिया से भी आगे तक फैली हुई थी। श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के किंग्स नियमित रूप से गुप्ता एम्परर को ट्रिब्यूट भेजते थे। हालांकि गुप्ता एम्पायर मुख्य रूप से नॉर्दर्न इंडिया तक ही सीमित था। अ ग्रेट पर्सनैलिटी। समुद्रगुप्ता was not only a great conqueror, he was also a great scholar, a poet and a lover of music. Samudragupta had keen interest in art and learning. He himself was a good poet and musician. In one of his coins, he is shown playing a veena. Though he was a Hindu, he showed respect towards other religions. He was also a patron of learning. He worshipped Lord Vishnu. समुद्रगुप्ता न केवल एक महान विजेता ग्रेट कॉन्करर थे, बल्कि एक विद्वान स्कॉलर, कवि, पोएट और संगीत प्रेमी लवर ऑफ म्यूजिक भी थे। उन्हें कला और शिक्षा आर्ट एंड लर्निंग में गहरी रुचि थी। वे स्वयं एक कुशल कवि स्किल्ड पोएट और संगीतकार म्यूजिशियन थे। उनके कॉइन्स में से एक में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। हालांकि वे हिंदू थे, फिर भी उन्होंने अन्य धर्मों रिलीजन्स के प्रति सम्मान रिस्पेक्ट दिखाया। वे शिक्षा और विद्या एजुकेशन एंड लर्निंग के भी समर्थक पैट्रन थे। उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति की। चंद्रगुप्ता 380-412 AD। Chandragupta II is known as Chandragupta Vikramaditya. He was the son of Samudragupta. In 380 AD, he ascended the throne. He extended the boundaries of his empire by matrimonial alliances and other conquests. He married with a Naga princess. His first military achievement was his victory over Bengal, but his greatest victory was the one over the 3 provinces of western India: Malwa, Gujarat and Kathiawar. चंद्रगुप्ता II, जिसे चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, समुद्रगुप्ता के पुत्र थे। उन्होंने 380 AD में सिंहासन ग्रहण किया। उन्होंने अपने एम्पायर का विस्तार मैट्रिमोनियल अलायंसेस और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स के माध्यम से किया। उन्होंने नागा प्रिंसेस से मैरिज किया। उनकी पहली मिलिट्री विक्ट्री बंगाल पर हुई, लेकिन उनकी सबसे ग्रेटेस्ट विक्ट्री वेस्टर्न इंडिया के 3 प्रमुख प्रांतों मालवा, गुजरात और कथियावर पर हुई। He assumed the titles of Vikramaditya, the son of bravery and power, and Sakri, the enemy of Sakas, after defeating the Saka chiefs. He maintained friendly relations with the kings of the Deccan and South. Fahin, the Chinese traveler, visited India during the reign of Chandragupta II and left a comprehensive account of life in the Gupta Empire. चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य, साहस और शक्ति का पुत्र, और सक्री, शकों का शत्रु, की उपाधि टाइटल्स धारण की जब उन्होंने सका चीफ्स, शक नरेशों
को पराजित किया। उन्होंने डेक्कन और दक्षिण के राजाओं, किंग्स ऑफ द डेक्कन एंड साउथ, के साथ मैत्री संबंध, फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखे। फाहिन, जो एक चीनी यात्री, चाइनीज ट्रैवलर थे, चंद्रगुप्ता टू के शासनकाल में भारत आए और गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर के जीवन और व्यवस्था, लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का विस्तार से वर्णन, अकाउंट किया। अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियां। एक, चंद्रगुप्ता टू वॉज अ पैट्रन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स। कालिदासा was the greatest literary figure of this age. चंद्रगुप्त टू साहित्य, लिटरेचर और कला, आर्ट्स के महान संरक्षक थे। इस युग के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार, लिटरेरी फिगर, कालिदासा थे। 2. He developed trade relations with China as well as with Rome and Egypt. उन्होंने चाइना, रोम और इजिप्ट के साथ व्यापारिक संबंध, ट्रेड रिलेशंस, विकसित किए। 3. He issued a large number of coins which speak about the prosperity of the Gupta Empire. उन्होंने बड़ी संख्या में सिक्के, कॉइन्स, जारी किए जो गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाते हैं। 4. Being Hindu, he always worshipped Lord Vishnu, but he allowed his people to have their own religious beliefs. वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे और भगवान विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रजा, सब्जेक्ट्स को धार्मिक विश्वास, रिलीजियस बिलीफ्स की स्वतंत्रता प्रदान की। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्ता 2. Fahin, the Chinese pilgrim, has written about the efficient administration of the Gupta Empire. The Gupta dynasty produced a number of able rulers. They established an efficient administration system. There were 3 levels of administration. चंद्रगुप्त टू का शासन प्रशासन। फाहिन, चीनी यात्री, ने गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर के सुशासित प्रशासन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है। गुप्ता वंश, गुप्ता डायनेस्टी ने कई शक्तिशाली शासक, एबल रूलर्स दिए, जिन्होंने एक सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्थापित की। गुप्ता साम्राज्य में 3 स्तरों का प्रशासन, 3 levels of administration था। Central administration. The king carried titles like Maharajadhiraj. The ministers were selected on the basis of their personal qualities. Several ministers were recruited to assist the king in administrative tasks like Minister of Justice, Minister of War and Peace etc. राजा को महाराजाधिराजा, महाराजाधिराज जैसी शक्तिशाली उपाधि, पावरफुल टाइटल्स दी जाती थी। शासन को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए मंत्रियों का चयन व्यक्तिगत गुणों, पर्सनल क्वालिटीज के आधार पर किया जाता था। राजा के सहायक के रूप में कई मंत्री नियुक्त किए जाते थे, जो विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को संभालते थे, जैसे न्याय मंत्री, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए। युद्ध और शांति मंत्री, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, सैन्य और शांति मामलों के प्रबंधन के लिए। राजकोष अधिकारी, फाइनेंस मिनिस्टर, आर्थिक मामलों और कर संग्रहण की देखरेख के लिए। ग्राम और नगर प्रशासन मंत्री, मिनिस्टर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, गांवों और नगरों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द एम्पायर was divided into several provinces called Uparika. Each province was headed by a governor known as Uparika Maharaja.
The provinces were further divided into districts called Vishyas. The head of the district was known as Vishapti. The persons who had a position of authority were Pratham Kayastha. गुप्त साम्राज्य को कई प्रांतों प्रोविंसेस में बांटा गया था, जिन्हें उप्रिका, उपारिका कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत का प्रमुख एक राज्यपाल, गवर्नर होता था, जिसे उप्रिका महाराजा, उपारिका महाराजा के नाम से जाना जाता था। प्रांतों को और भी छोटे छोटे विभागों, डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया था, जिन्हें विश्यास कहा जाता था। प्रत्येक जिले का प्रमुख विशप्ति होता था। प्रशासन में प्रथम कायस्था जैसे अधिकारी होते थे, जो शासक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे और राज्य के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करते थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। The village continued to be the basic unit of administration. Each village was under a village headman known as Gramika. His duty was to enforce the law and to keep the peace. He was assisted by a village council comprising the elders of the village. The Nagapatas, with the help of a parishad, that is the council of citizens, carried on administration in towns and cities. गांव को प्रशासन की सबसे बुनियादी इकाई माना जाता था। प्रत्येक गांव में एक ग्रामिका, ग्राम प्रमुख होता था, जिनका मुख्य काम कानून लागू करना और शांति बनाए रखना था। उन्हें गांव के बुजुर्गों की काउंसिल, परिषद द्वारा मदद दी जाती थी। शहरों और कस्बों का प्रशासन नगरपति, नगर प्रमुख और परिषद, नागरिक परिषद द्वारा चलाया जाता था, जो नागरिकों का एक समूह था। यह परिषद शहरों और कस्बों के प्रशासनिक मामलों को देखती थी और नगरपति को प्रशासन में सहायता करती थी। न्यू सिस्टम इन आर्मी। During this period, the system of giving land grants was prevailing. It had started during the Satavahana period and gradually became a practice. Earlier, land grants were given only to the priestly class. But later on, it was provided to bureaucrats also in lieu of their salary. इस समय के दौरान भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स देने की व्यवस्था प्रचलित थी। यह व्यवस्था पहले सातवाहन काल में शुरू हुई थी और धीरे धीरे एक सामान्य प्रथा बन गई। पहले भूमि अनुदान केवल ब्राह्मणों, प्रीस्टली क्लास को दिए जाते थे, लेकिन बाद में यह ब्यूरोक्रेट्स को भी वेतन के रूप में दिया जाने लगा। सामंथास, a class of landlords, were the result of increasing land grants. They acted as intermediaries between the king and the peasants. They were assigned to collect revenues, to maintain soldiers and horses, and to provide equipment for warfare. The king maintained regular army. Samanatas also provided the king with troops whenever he needed. सामंथास, जो कि जमींदारों, लैंडलॉर्ड्स की एक श्रेणी थी, बढ़ते हुए भूमि अनुदानों, लैंड ग्रांट्स का परिणाम थे। वे राजा और किसानों के बीच मध्यस्थ, इंटरमीडियरीज के रूप में कार्य करते थे। उन्हें राजस्व, रेवेन्यूज एकत्र करने, सैनिकों और घोड़ों को बनाए रखने और युद्ध, वॉरफेयर के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता था। राजा ने एक नियमित सेना, आर्मी बनाए रखी थी। सामंतों को भी राजा की जरूरत पड़ने पर सैनिकों की आपूर्ति करनी होती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स। During the Guptas, people progressed in every field: trade, commerce, manufacture, science, medicine, mathematics, astronomy,
art and architecture, language and literature. In international contact and diplomacy, India's name and fame spread in all directions. The Guptas issued coins in gold. This shows the economic prosperity of this period. Trade and commerce, both internal and external, flourished. There was a network of good roads that connected the major cities. India was prosperous and politically stable. गुप्त काल के दौरान लोग हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे थे। व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, खगोलशास्त्र, कला और वास्तुकला, भाषा और साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और कूटनीति, भारत का नाम और प्रतिष्ठा हर दिशा में फैल रही थी। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए, जो उस समय की आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों में उन्नति हुई। प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला एक अच्छा सड़क नेटवर्क था। भारत समृद्ध और राजनीतिक रूप से स्थिर था। साइंस। Great progress was made in the field of astronomy, mathematics and medicine. The Gupta's age, therefore, was called as an age of science. Aryabhatta and Varamihira, both were astronomers and mathematicians. Aryabhatta declared that the earth moves round the sun. He wrote two famous books, Aryabhatiya and Surya Siddhanta. Brihad Sanghita written by Varamihira deals with astronomy and mathematics. इस अवधि में एस्ट्रोनॉमी, खगोलशास्त्र, मैथमेटिक्स, गणित और मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में महान प्रगति हुई। इसलिए गुप्ता एज, गुप्त काल को विज्ञान का युग माना जाता है। आर्यभट्टा, आर्यभट्ट और वराहमिहिर, वराहमिहिर दोनों खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। आर्यभट्टा ने यह घोषणा की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन्होंने दो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, आर्यभट्टिया, आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांता, सूर्य सिद्धांत। वराहमिहिर द्वारा लिखी गई बृहद संहिता खगोलशास्त्र और गणित पर आधारित है। There were mastersmiths during the Guptas who had profound knowledge of metals. They made experiments in mixing metals to make alloy. The iron pillar at Mahrauli is proof of that. गुप्त काल के दौरान ऐसे मास्टरस्मिथ्स, विशेषज्ञ लोहार थे जिनके पास धातुओं का गहरा ज्ञान था। उन्होंने धातुओं को मिलाकर अलॉय, धातु मिश्रण बनाने के लिए प्रयोग किए। महरौली में स्थित लौह स्तंभ इसका प्रमाण है। Social and religious conditions. Fahim gave a lot of information about the social condition of the people during the Gupta age. Society was divided on the basis of the four varnas. The Brahmins were highly respected. Slavery was prevalent in the Gupta age, but not in any rigid form. Untouchability continued to be practiced rigidly. The joint family continued to be the backbone of Hindu society. The practice of sati was becoming a practice among the royal families. फाही ने गुप्ता काल के दौरान लोगों की सामाजिक स्थिति के बारे में बहुत सी जानकारी दी। समाज चार वर्णों के आधार पर विभाजित था। ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किया जाता था। गुप्ता काल में दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन यह कठोर रूप में नहीं थी। अस्पृश्यता का पालन सख्ती से किया जाता था। संयुक्त परिवार हिंदू समाज की रीढ़ बना हुआ था। रानी परिवारों में सती की प्रथा बढ़ने लगी थी। ब्रह्मा, Vishnu and Mahesh were worshipped at that time because the kings were the followers of Hindu religion.
Shiva was worshipped in his many names, e.g., Kailashnath, Lokeshwara, Trilokeshwara, etc. Many temples were built in the kingdom. People performed Vedic yajnas. Other religions including Buddhism and Jainism were also adopted. They also built Jana temples. Buddhism was in decline but had not quite disappeared. इस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा की जाती थी क्योंकि राजा हिंदू धर्म के अनुयायी थे। शिव की पूजा उनके कई नामों से की जाती थी, जैसे कैलाशनाथ, लोकेश्वर, त्रिलोकेश्वर आदि। राज्य में कई टेम्पल्स, मंदिर बनवाए गए थे। लोग वैदिक यज्ञ करते थे। अन्य धर्मों, जिनमें बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी शामिल थे, को भी अपनाया गया था। उन्होंने जौना टेम्पल्स, जैन मंदिर भी बनवाए। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में गिरावट आ रही थी, लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। Decline of the Gupta Empire. India was threatened from the north by a race of nomadic people known as Hunas in the 5th century AD. Repeated invasions of the Hunas weakened the Gupta Empire to such an extent that the provincial governors had no difficulty in breaking away and becoming independent. The Gupta dynasty came to an end with the death of Vishnu Gupta in 550 AD. इंडिया उत्तर से एक नोमैडिक यायावर लोग जिनका नाम हुन था से धमकी का सामना कर रहा था, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में आए थे। हुन के लगातार आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को इस हद तक कमजोर कर दिया कि प्रोविंशियल गवर्नर्स, प्रांतीय गवर्नर के लिए अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र करना आसान हो गया। गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश का अंत विष्णुगुप्त की मृत्यु के साथ 550 AD 550 ईस्वी में हुआ। हर्षवर्धना एंड हर्षचारिता. A new kingdom arose at Thanesar, near Kurukshetra, Haryana, in the 7th century, about 100 years after the end of the Gupta era. It was also the birthplace of Harshavardhana, who is known better in history as Harsha. He came to the throne after the death of his brother in 606 AD. He is the last great Hindu emperor of northern India. He died in 647 AD. 7वीं शताब्दी में गुप्ता एरा, गुप्त काल के समाप्त होने के लगभग 100 साल बाद थानेसर, जो कुरुक्षेत्र, हरियाणा के पास स्थित था, में एक नया साम्राज्य उभरा। यह वही स्थान था जहां हर्षवर्धन का जन्म हुआ, जिन्हें इतिहास में हर्ष के नाम से अधिक जाना जाता है। वह अपने भाई की मृत्यु के बाद 606 AD 606 ईस्वी में थ्रोन पर बैठे। वह नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट थे। उन्होंने 647 AD 647 ईस्वी में अपनी मृत्यु को प्राप्त किया। Sources. There are two important sources which give us information about Harsha and his achievements. The first important source is the Harshacharita, which was written by his court poet Bana Bhatta. Harsha himself took intense interest in art and literature. He wrote 3 Sanskrit plays, Ratnavali, Priyadarshika and Nagananda. The second is the travel account of the Chinese pilgrim Hianzhang,
who visited India during the reign of Harsha. हर्षा और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण सोर्सेस स्रोत हैं। पहला इम्पोर्टेंट सोर्स महत्वपूर्ण स्रोत है हर्षचारिता हर्षचरित, जिसे उनके कोर्ट पोएट दरबारी कवि बना भट्टा बाण भट्ट ने लिखा। हर्षा ने स्वयं कला और साहित्य में गहरी रुचि ली थी। उन्होंने 3 संस्कृत प्लेस संस्कृत नाटक लिखे थे, रत्नावली रत्नावली, प्रियदर्शिका प्रियदर्शिका और नागानंदा नागानंद। दूसरा स्रोत है चीनी पिलग्रिम यात्री हायनज़ांग हुआनत्सांग का यात्रा वृत्तांत, जिन्होंने हर्षा के शासनकाल में भारत का दौरा किया। Kannauj was central place and hence Harsha shifted his capital from Thanesar to Kannauj. With the help of his large army, he conquered many parts of northern India, including the Punjab, eastern Rajasthan and the Ganga Valley as far as Assam. He led a powerful army against the kings of the Deccan. कन्नौज एक सेंट्रल प्लेस केंद्र स्थान था और इसलिए हर्षा ने अपनी कैपिटल राजधानी को थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। अपनी बड़ी आर्मी सेना की मदद से उसने नॉर्दर्न इंडिया उत्तर भारत के कई हिस्सों को जीत लिया, जिनमें पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और गंगा वैली गंगा घाटी तक के क्षेत्र शामिल थे, यहाँ तक कि असम तक। उसने डेक्कन दक्षिण भारत के राजाओं के खिलाफ भी एक शक्तिशाली सेना का नेतृत्व किया। But he was stopped by the Chalukya king Pulkesin II of Vatapi or Badami in Karnataka. As a result, Harsha had to return without success in his mission. Banbhatta has said that Harsha was totally changed after this setback. लेकिन चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने वातापी या बदामी में, जो कर्नाटका में है, उसे रोक दिया। इसके परिणामस्वरूप हर्षा को अपनी मिशन में सफलता प्राप्त किए बिना वापस लौटना पड़ा। बाणभट्ट ने कहा है कि इस सेटबैक विफलता के बाद हर्षा पूरी तरह से बदल गए थे। The dimension of Harsha's empire was similar to that of the Gupta. It extended from the Arabian Sea to the Bay of Bengal and from Kashmir to Narmada. His greatest achievement was the political unification of a large part of India. The subdued kings paid him tribute and sent him soldiers when he was at war with others. But they continued as rulers of their kingdoms. हर्षा के साम्राज्य का आकार गुप्त साम्राज्य के समान था। यह अरेबियन सी अरब सागर से लेकर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी तक और कश्मीर से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के एक बड़े हिस्से का राजनीतिक एकीकरण था। जो राजा उसे पराजित कर चुके थे, वे उसे ट्रिब्यूट कर अदा करते थे और जब वह दूसरों से युद्ध करता तो वे उसे सैनिक भी भेजते थे, लेकिन वे अपने अपने राज्यों के शासक बने रहे। Religion's beliefs of Harsha. It is believed that Harsha adopted Buddhism and made a great efforts to popularize it. But he still respected other faiths. Harsha met Hayanzang and had a long discussion with him. He used to hold a religious assembly every 5th year at Prayag, where he liberally distributed grants and alms to saints of all religions. यह माना जाता है कि हर्षा ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे प्रसारित करने के लिए उसने महान प्रयास किए, लेकिन फिर भी उसने अन्य धर्मों का सम्मान किया। हर्षा ने हायनज़ांग से मुलाकात की और उनके साथ लंबी चर्चा की। वह प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक धार्मिक सभा आयोजित करता था, जहां वह सभी धर्मों के संतों को उदारतापूर्वक ग्रांट्स अनुदान और आल्म्स
दान वितरित करता था। Hainzang. Hainzang was Chinese traveler who wrote book which contained lots of information about Harsha's reign. The dress of the people varied from region to region. Hainzang described the Indian people as hot-tempered but honest. The people were very particular about cleanliness. He found that Buddhism was on the decline. It was popular in eastern India. He spent some years at the Nalanda University. This was a leading university of the time. Students flocked from all parts of Asia to this university. After Hainzang's visit, Harsha sent a mission to China, which established the first diplomatic relations between China and India. Hainzang एक चाइनीज यात्री थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें हर्षा के शासनकाल के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। लोगों के कपड़े क्षेत्र दर क्षेत्र अलग अलग थे। हाइनजैंग ने भारतीय लोगों को गर्म स्वभाव वाला लेकिन ईमानदार बताया। लोग स्वच्छता के प्रति बहुत सचेत थे। उन्होंने पाया कि बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, गिरावट की ओर था। यह पूर्वी भारत में लोकप्रिय था। वह कुछ सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहे, जो उस समय का प्रमुख विश्वविद्यालय था। एशिया के विभिन्न हिस्सों से छात्र इस विश्वविद्यालय में आते थे। हाइनजैंग के दौरे के बाद हर्षा ने चीन को एक मिशन भेजा, जिससे भारत और चीन के बीच पहले राजनयिक संबंध स्थापित हुए। द डिक्लाइन ऑफ हर्षाज एम्पायर। हर्षा वॉज अ ग्रेट किंग। He died in 647 AD. After his death, there was much confusion in the country. No one could keep the empire united. The kingdom broke up into many smaller units, which kept fighting against each other. हर्षा एक महान सम्राट थे। उन्होंने 647 AD में मृत्यु को प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के बाद देश में काफी भ्रम फैल गया। कोई भी व्यक्ति साम्राज्य को एकजुट नहीं रख सका। साम्राज्य कई छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया और ये सभी एक दूसरे से युद्ध करते रहे। रूलर्स ऑफ द डेक्कन। द पल्लवास। द पल्लवास वर द ऑफिसर्स ऑफ द सतवाहना पीरियड। आफ्टर इट्स डिक्लाइन द पल्लवास एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ देयर ओन। दे मेड कांचीपुरम देयर कैपिटल. The Pallavas fought prolonged wars against the Pandyas and the Chalukyas. They conquered the land to the south of Kachipuram, Tanjore and Pudukkottai region. Mahendravarman was a famous king of the Pallava dynasty. He ruled at the same time as Harsha and Pulkesin too. The Pallavas has a very strong navy and they also built several dockyards. पल्लवा सतवाहना काल के अधिकारी थे। इसके पतन के बाद पल्लवास ने अपने खुद के स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। पल्लवास ने पांड्या और चालुक्यस के खिलाफ लंबी लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने कांचीपुरम के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों जैसे तंजौर और पुडुकोट्टाई को जीत लिया। महेंद्रवर्मन पल्लवा वंश के प्रसिद्ध राजा थे। वे हर्षा और पुलकेशिन के समय में शासक थे। पल्लवास का एक बहुत मजबूत नौसेना थी और उन्होंने कई डॉकयार्ड भी बनवाए। द चालुक्यस। पुलकेशिन II was the best known king of the Chalukya dynasty. We know about him from Prashasti, which was composed by his court poet Ravikirti. He ruled in the south at the same time as Harsha in the north. He was an ambitious ruler and wanted to control the whole of the Deccan Plateau. He fought battle against Harsha on the banks of the river Narmada. He fought bravely and finally defeated Harsha, demoralizing him badly. पुलकेशिन II चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। वे दक्षिण में शासक थे और हर्षा के साथ उत्तर में उसी समय शासन कर रहे थे। वे एक महत्वाकांक्षी शासक थे और डेक्कन प्लाटो के पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहते थे।
उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे हर्षा से युद्ध लड़ा। उन्होंने बहादुरी से लड़ा और अंततः हर्षा को हराया, जिससे वे बुरी तरह निराश हो गए। The capital of the Chalukyas was Aihole, which was regarded as a flourishing city. The Chalukyas had trade relations with Iran, Arabia and Red Sea ports in the west, and also with the kingdoms of Southeast Asia. The Chalukya kings were great patrons of art. They gave money liberally for the building of temples and cave shrines in the Deccan hills. We find fine specimens of sculpture at Ellora. The credit for these masterpieces of art goes to the Chalukya kings. चालुक्य वंश की राजधानी आइहोले थी, जिसे एक समृद्ध शहर माना जाता था। चालुक्यस का व्यापारिक संबंध ईरान, अरेबिया और रेड सी के बंदरगाहों से था, साथ ही साउथ ईस्ट एशिया के साम्राज्यों से भी उनका व्यापार होता था। चालुक्य के राजा कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने डेक्कन हिल्स में मंदिरों और गुफा मंदिरों के निर्माण के लिए उदारतापूर्वक धन दिया। हम एलोरा में शिल्पकला के बेहतरीन नमूने पाते हैं। इन कला के उत्कृष्ट कृतियों का श्रेय चालुक्य राजाओं को जाता है। Administration. Almost all administrative units were set up in the villages. In connection with the management of village affairs, various types of committees were formed. Some of these were Sabha, Ur, Shirur, Small Village, etc. Of all the village committees, the Sabha was considered the most important. The Sabha was an assembly of Brahman landowners. Besides, several subcommittees were formed to complete all the different tasks of Sabha. लगभग सभी प्रशासनिक इकाइयां गांवों में स्थापित की गई थी। गांवों के मामलों के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई थी। इनमें से कुछ थी सभा, उर, शिरूर, छोटे गांव आदि। इन सभी गांव समितियों में सभा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। सभा एक ब्राह्मण भूमि मालिकों की सभा थी। इसके अलावा सभा के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए कई उपसमितियां भी बनाई जाती थी। The task of looking after irrigation, sanitation, agricultural production, temples, roads, etc. was assigned to these subcommittees. The assembly of non-Brahman villages was known as Ur. In this assembly, matters important to a village were discussed by the local residents. The assembly of mercantile groups was known as Nagaram. It is believed that village assemblies enjoyed full powers in the management of rural affairs. Many of these local assemblies continued to function for centuries. इन उपसमितियों को सिंचाई, स्वच्छता, कृषि उत्पादन, मंदिरों, सड़कों आदि की देखरेख का काम सौंपा गया था। गैर ब्राह्मण गांवों की सभा को उर कहा जाता था। इस सभा में गांव से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थानीय निवासियों द्वारा चर्चा की जाती थी। व्यापारी समूहों की सभा को नगरम कहा जाता था। यह माना जाता है कि गांव की सभाओं को ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में पूरी शक्तियां प्राप्त थीं। इन स्थानीय सभाओं का कार्य बहुत सदियों तक जारी रहा।